میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سالگرہ منانی چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے قندیل سالگرہ منانی چاہیے. سالگرہ کے بغیر بھی سال ایک کم ہو ہی جائے گا, تو اس کو جو سال کم ہو گیا اس کو ہنسی خوشی منا لے, اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے. اور جب ہم بچپن میں سالگرہ ہماری منائی جاتی ہے, جب ہمیں ہوش نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا, جو ہمارے ماں باپ اور ہمارے چچا چچی وہ خوش ہو رہا ہوتے ہیں, ہم کو تو پتہ نہیں ہوتا. جب شعور آتا ہے تو سالگرہ ختم ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ سال جا رہا ہے پیچھے تو اس کو خوشی خوشی منا لیں, ویسے بھی جانا ہے یار, سالگرہ منا کے چلے جائیں زیادہ بہتر ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. ویسے بھی انسان جو ہے اس کو خوشی کے مواقع بہت کم زندگی میں ملتے ہیں, وہ اپنے مسئلے مسائل میں گھرا رہتا ہے. تو میں کہتی ہوں ایک بہانہ ہے, اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ چیز سالگرہ ہے, جسٹ ایک سیلیبریٹ کرنے کا دوستوں کے ساتھ ایک بہانہ ہے کہ آپ کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا. ورنہ یہاں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں جب آپ دوستوں سے رشتہ داروں سے نہیں مل پاتے. جہاں سے ملنے تو ایک طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا ایک موقع اور بہانہ ہے. جیسے قندیل مجھے کہنے دیجیے کہ اس وقت آپ کی سالگرہ جو ہے وہ سیوانی صاحب نے یہاں منعقد کی ہے, تو اس میں ہم سب بیٹھ کے جو ہم کبھی نہیں بہت کم ملتے ہیں, کبھی ہیلو ہائی ہو جاتی ہے آرٹس کاؤنسل میں یا کسی بھی اسٹیج پر. میں نے بہت ابھی سال بھر ہو گیا دیکھا تھا, مگر اب یہاں تو یہ سیوانی صاحب نے تقریباً دیکھا جائے تو ہم سب کو خوش کر دیا. پرانے دوست ہیں, نئے دوست ہیں, یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے, بالکل کیا ہے کوالٹی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے, ایک زمانہ تھا جب لوگ بالکل اکٹھے ہوتے تھے, گھروں میں آتے جاتے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان دور ہوتا جا رہا ہے, فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں سالگرہ ہو یا کوئی اور تقریب ہو, میرے خیال ہے کہ مل بیٹھنا ایک اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ اپنی سالگرہ کیسے مناتے ہیں؟ جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری بھی کوئی سالگرہ کرے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کیک کاٹے, یا ضروری ہے کہ خوشی ہوتی ہے, اندرونی خوشی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر. اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کو وش کر رہا ہے, کوئی اس کے لیے کچھ لے کر آیا ہے, یا ایک پھول لے کر آیا. پھول بھی ضروری نہیں ہے کہ اتنے سارے ہوں یا گفٹ اتنے سارے ہوں, صرف ایک پھول کی ایک ٹہنی بھی, وہ بھی بہت خوشی سے اگر دی جائے کسی کو تو وہ بہت زیادہ جو ہے انسپائر کرتا ہے. اور سالگرہ تو منانی چاہیے. زندگی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, اتنے فرسٹریشنز ہیں, اتنی ایڈکس ہیں, پرابلمس کی, گھر کی, باہر کی, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی خوشی کا چھوٹا سا بھی موقع ملے, اسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تھینک یو آپ کو اگین ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا بات یہ ہے کہ اب اگر رشتے دار اور گھر والے سالگرہ نہ بھی منائے نا تو فیس بک فرینڈز بنا لیں, اور اتنی زیادہ وشز ہوتی ہیں کہ اور دل خوش ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے جب لوگ کہتے ہیں نا جی بہت نقصانات ہیں, سوشل میڈیا نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے, وہاں سوشل میڈیا نے محبتیں بانٹنے کا جو رول ادا کیا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بے شک یہ خود فریب ہی صحیح, کچھ بھی صحیح, لیکن انسان کو خوش تو کرتی ہے نا جب آپ کو ہزاروں لوگ وش کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کے دور میں وہ لوگ جو خاص طور پر تنہا ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کے فیس بک فرینڈز جو ہیں ان کو وش کرتے ہیں. اور میں بھی اپنے آپ کی اس چینل کے توسط سے اپنے تمام فیس بک فرینڈز کو کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنے پھول, اتنی وشز بھیجی ہیں. ابھی میں نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا کیونکہ میں آج مصروف تھی, آپ کی طرف آنا تھا, لیکن میں گھر جا کر ان سب کا شکریہ فردن ادا کروں گی کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد رکھا ہے. اور اس سے کم از کم ایک جینے کی یا ایک زندگی سے محبت کرنے کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے انسان کے اندر. ورنہ تو جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اور ہمارے معاشرے کے, وہ انسان کو اتنا ڈپریس کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی کی جینے کی خواہش بھی کم ہونے لگتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دوست اور یہ ہمارے جتنے احباب ہیں اور سوشل میڈیا ہے, یہ اس احساس کو تقویت دینے میں اور اس خواہش کو, جینے کی خواہش کو مضبوط بنانے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. تو باقی ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو تو ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پازیٹیو پہ نظر رکھنی چاہیے. آپ سے میں پوچھوں گی کہ بچپن میں تو یقیناً آپ کی سالگرہ منائی جاتی ہوگی, تو کیا آپ بھی آپ کے گھر والے آپ کی سالگرہ دھوم دھام سے مناتے ہیں یا آپ خود ہی کیک لے آتی ہیں؟
बचपन में तो वाकई नहीं मनाई मेरी सालगिरह किसी ने भी, तो हमारे घर में इतना वो नहीं था कि सालगिरह मनाई जाए। लेकिन अभी मैं बड़े जोशो खरोश से अपनी सालगिरह सबको बताती रहती हूँ कि 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, और मेरे बच्चे भी, सबको ये इंतजार होता है कि मम्मी की सालगिरह आ रही है। मैं सबको रिमाइंड करवाती रहती हूँ, कुछ भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करना। जिंदगी का 1 साल कम होना या ज्यादा होना, मकसद ये है कि खुशी किसी तरह से मिले, इसको मिस नहीं करना चाहिए। खुशी हर तरह से जहाँ से मिले लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और अल्लाह ताला आपको हजारों सालों की खुशियाँ इस 1 साल में जो कमी होने वाली है वो नसीब। कमेंट प्लीज। इस पे तो मैं शेयर कहूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक लम्हा भी खुशी का बहुत होता है, लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। तो जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत आर्जी है, और इसमें से हम जितनी भी खुशी कशीद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और वो लोग बहुत कामयाब होते हैं जो जिंदगी में खुश रहने का हुनर जान लेते हैं। और मैं खुद बेसिकली आई एम अ सैड पर्सन, मेरे अंदर उदासी ज्यादा है, लेकिन मुझे ये पता है कि खुशी जो है वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। खुशी ये नहीं होती कि कोई आके हमें पकड़ाएगा या थाली में रख कर देगा, लो भी ये खुशी आप तुम खुश हो जाओ। खुशी हमें खुद तलाश करनी है, ढूंढनी है, पैदा करनी है। कोई ना कोई ऐसी बात हमें अपनी जिंदगी में शामिल करनी है जो खुशी का बायस बन सके। तो खुश रहने का अमल जो लोग जान जाते हैं वो बहुत खुशकिस्मत भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं। और जो दुख को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो जाहिर है जिंदगी ने तो गुजर ही जाना है, जिंदगी गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, फिर आप एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप लूजर ही होगे ना। तो जिंदगी में जो भी खुशी के लम्हे वो जिंदगी का असासा होते हैं, तो इसलिए उन लम्हों की तलाश में हर वक्त रहना चाहिए। सालगिरह का फलसफा मेरी नज़र में ये है कि सालगिरह मनानी चाहिए, क्योंकि सालगिरह मनाने से इंसान को एक अंदर से खुशी महसूस होती है और उसे आगे के नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्लानिंग करने में भी बड़ी मदद मिलती है कि आइंदा जो है वो हमें क्या प्लानिंग करनी है। क्योंकि मेरी उम्र 1 साल कम हो गई है, तो मैं चाहता हूँ ये काम करूँ, ये काम करूँ, तो वो उसके अंदर एक जज्बा पैदा करती है ये चीज़, और उसको आगे बढ़ने में बड़ी मददगार साबित होती है, जो उसके बच्चों के लिए भी बड़े फायदेमंद होती है। और हमारे नवेद जाफरी साहब हैं, ये जब सालगिरह मनाते हैं तो फिर ये सोचते नहीं है, कहते हैं मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं इसको हाथ लगा के आगे करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, तुम आगे की तरफ हो, तुमने अपना काम किया जबरदस्त। तो ये आपके हकीकतन दोस्त होते हैं ना, वहाँ आके पता चलता है कि बाकी आपके कोई दोस्त हैं जो आपको इस वक्त जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी खुशी में शामिल हैं। वरना दोस्त तो बेतहाशा होते हैं, लोग समझते हैं कि शायद बहुत है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा मौका होता है कि आपको पता चलता है कि टिप बताएंगे किस चीज की जिंदगी में खुश रहने का। देखिए, असल बात यह है कि गम तो इंसान के साथ हर एक के साथ लगे हुए हैं। जिसको भी आप छेड़ोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसी बातें होंगी जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो उसे ही सॉल्व करनी पड़ती है। तो ये सोच कर लोगों को अपना एक सैड चेहरा दिखाना, उनको भी गमगीन करना, दूसरों को उदास करना, उससे अच्छा है कि आप उस सोल्यूशन पे जाएं कि जो उस मुसीबत को, उस गम को ख़त्म कर सकता है। तो अगर सोल्यूशन आप ढूंढेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर होंगे, बजाय दूसरों को परेशान करने के। इंसान को खुश रहना चाहिए। बात ये कि कनाडा में जितने भी लोग पाकिस्तानी रहते हैं, जब हम यहाँ होते हैं तब उसका एहसास नहीं होता। पाकिस्तान जाके हमें पता चलता है कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हमें जब भी होता है जब हम लोग वहाँ होते हैं। और ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये वहाँ पे बहुत कम होती हैं। वहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं होते, वहाँ सब दोस्त अहबाब होते हैं हमारे। और उसमें ये होता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्ती हालात या वक्ती बिजनेस उसकी वजह से मिल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज और जो सालगिरह मनानी इसलिए जरूरी है कि उससे सब गेट टुगेदर हो जाती है। और कोई कुछ भी कहता है कि सालगिरह कम हुए, लेकिन जब भी कोई आपके चाहने वाला, चाहे वो बच्चे हैं, बीवी है, भाई है, दोस्त है, जब भी आपको हैप्पी बर्थडे टू कहता है, सब कुछ चाहते हुए अंदर से आप बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सालगिरह मनानी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बैठने का भी एक बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुख्तार साहब ने जो अहम बात की है वो ये की है कि ये कहना कि हम कनाडा में रहते हैं तो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं। अपने वतन से रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता ज्यादा। वो है ना कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव खड़ी होती है, हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। लेकिन बाहर खुशी के मौके तो तलाश करने होते हैं, आप पाकिस्तान में रहें या कनाडा में। तो अब सेवानी साहब जो है उनसे मैं पूछती हूँ कि सेवानी साहब का जो मैंने अमूमी तर्ज अमल देखा है कि ये खुश रहते हैं,
मतलब पिछले चंद साल में कई बीमारियों ने इन पर हमला किया और जो सेंसिटिव आदमी होता है वो मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन मैंने देखा है कि इन्होंने उन बीमारियों को भूलकर खुशी के पहलू तलाश किए, ये चैनल बनाया, इस चैनल की सारी तैयारी में ये जैसे मसरूफ रहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत पॉजिटिव इंसान है कि इनकी जो सेहत है इस वक्त, इनका तंदुरुस्त होना, सेहतमंद होना, वो दलील है इस बात की कि इन्होंने बीमारी को हावी नहीं किया। और वाकई हकीकत है कि जब आप ज़हनी तौर पे किसी बीमारी को हावी करते तभी वो बीमारी आप पर हमला करती है, वरना लोगों ने अपनी भीड़ पार से बड़ी बड़ी बीमारियों को शिकस्त दे दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि सहवानी साहब का चैनल जो आगे जाएगा तो ये मजीद जवान होकर चले जाएंगे। तो सहवानी साहब से भी कहूँगी कि आप भी जरा आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। और बहुत शुक्रिया दिलजीत। पहली बात तो ये है कि आज आपकी सालगिरह है और आपने होम टीवी को ये इज्जत बख्शी कि आप यहाँ आई, और साथ ही मैं एक क्रेडिट आपको देना चाहूँगा। आप तमाम लोगों ने मेरे बारे में कहा कि ये सहवानी साहब ने बड़ा अरेंजमेंट किया, ये किया, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारी होम टीवी की लीग हैं ताज़ीम जवाल, जिनसे आपने शुरू में बात की थी, ये उनको जाता है कि उन्होंने इसको शायान कर दिया और इन्होंने ये सारे अरेंजमेंट में, इसलिए कि मैं तो मौजूद था यहाँ और अपनी रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ था, लेकिन बाकी सारे मामलात, सारे अरेंजमेंट्स वो ताज़ीम ने किए और ताज़ीम ने ही मुझे ये मतलब मौका दिया कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। असल में तारीफ इनकी है कि इन्होंने ये सारा काम किया। जहाँ तक सालगिरह का ताल्लुक है और इस सारे इवेंट का ताल्लुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आपको खुश करें तो आप खुश हों, आप लोगों की खुशियों में शरीक होकर भी खुश हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई मेरी सालगिरह मनाएगा तो मुझे खुशी होगी या कोई मुझे विश करेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे किसी को विश करने से उसे खुशी मिल सकती है, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ और एक तरह से चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, तो पूरे दावे और पूरे वसूख और यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी ये कोशिश की है कि मैं अपने दोस्तों के दामे दरमे सुखने कदमे किसी तरह से भी उनके काम आ सकता हूँ तो मैं आऊँ, और अगर नहीं आ सकता हूँ तो कम से कम उनको खुश देखता रहूँ। तो ये जो आज का मौका है ये भी वही है कि आपका ये मौका था, आपकी बर्थडे थी, ताज़ीम ने इसको तहरीक दे दी कि होम टीवी की तरफ से हम करें, और हमने भी चाहा कि वो आपकी फैन है पुरानी ताज़ीम जो है, और मेरी तो ख्वाहिश होती है हर साल हम फेसबुक पर तो आपको पहले ही कर लेते हैं विश, लेकिन ये है कि ये आज होम टीवी को एजाज़ भी हासिल हो गया कि आप पाकिस्तान की एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। आपने वो काम किए हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अब तक करना नसीब नहीं हुए हैं। आप पाकिस्तान की सफ़ीर के तौर पर आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। आपकी लाइव कंपेयरिंग, आपका लाइव टॉक, आपका लाइव स्टाइल, और फिर उसके साथ साथ आप एज ए ब्रॉडकास्टर भी बड़ी, तो ये तो हमारे लिए एक एजाज़ है कि आप हमारे हल्का अहबाब में हैं, हमारे दोस्तों की फहरिस्त में हैं, और हम उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और आपकी ऐसी 10, 20, 50 सालगिरहें और हमारे हाथों हों, हमें अच्छा लगेगा। तो ये है कि दोस्तों को खुश देखकर जो है जो खुशी होती है उसका नेमुल बदल और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, और वो लोग जो नहीं आ सके उनका भी खास तौर पर शुक्रिया कि उनके ना आने की कमी की वजह से हमने आज की तकरीब को ज्यादा गर्मजोशी से मनाया। तो सबका शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे विश किया, जिन्होंने यहाँ विश किया, और जो अब आगे इस वीडियो को देखकर विश करेंगे दिल को, उन सब का पेश भी शुक्रिया। और होम टीवी दोस्तों की खुशियों में हमेशा शरीक रहेगा इंशाअल्लाह, और आप हमेशा देखेंगे कि होम टीवी ने पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाया है, आगे उसको क्रिएट किया है, उसको फ़रोग़ दिया है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला, ये सफ़र
हमारा जारी रहेगा और उसके दिल के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया। आज मैं मेहमान होते हुए मेजबान भी थी, शायद मुझे मेजबान बनना ही अच्छा लगता है। आप सबका बहुत शुक्रिया।